In a general sense, limits allow us to determine what value a function is approaching when we use a particular input. Not necessarily what the function gives us as an output, but rather what value it's getting arbitrarily close to. Let's explain limits using an analogy. Suppose you are watching TV and start getting a massive craving for pizza. Fortunately, you just happen to have some leftover pizza in the kitchen. So you get up from the couch and start heading towards the fridge. If someone were to describe where you are going, they would say you are approaching the fridge. They would be confident in their description because as you keep walking, you are getting closer and closer to where the fridge is located. This example is the same thing we want to do with functions. When we take the limit of a function, we are describing where they are going. Let's see an example of this with the function 3x squared minus 1. For this function, I'm really curious what value the function is approaching as I use x values close to the number 2. Let's see this by using some inputs like 1.9, 1.99, and 1.999. When I use these, I get values such as 9.83, 10.8803, and 10.988003. From these values, it appears that the function is approaching 11. So we say that the limit of the function as x approaches 2 is 11. Remember, what I'm really saying here is that we can get arbitrarily close to the number 11. I just have to pick values that are sufficiently close to 2 in order to do it. Now at this point you might be thinking, that's fantastic, but couldn't you have also found the limit simply by plugging 2 into the function? Wouldn't that also give you 11? In this instance, the answer is yes. But the focus with the limit should be on what value it's approaching, and there are some functions where you simply can't plug in a number to find the limit. In other words, they are not always the same. Let's cover this by going back to our pizza analogy. Like before, you've been struck with a craving for pizza. So you are headed towards the fridge for a quick snack. Now, in one scenario, the fridge is there, loaded with pizza, and you can easily satisfy your craving for pepperoni. But in an alternate scenario, the fridge is gone, possibly stolen by pizza-craving ninjas, and you are left empty-handed. Even though both of these situations are completely different, your behavior leading up to them is exactly the same. In either case, you are still approaching the fridge. This is the key difference with limits. They are used to describe what value a function is approaching. They are not used to describe the value the function actually reaches. Let's see how this works with yet another function. Let's go ahead and use x squared minus 4 all divided by x minus 2. Like before, we are interested in what value the function approaches as we use x values close to 2. Let's go ahead and choose some inputs like 1.9, 1.99, and 1.999. When we use these, we get values of 3.9, 3.99, and 3.999. From these, it appears that the function is approaching 4. So again, we say that the limit of the function as x approaches 2 is 4. If you try and find this value by instead plugging in 2, something strange happens. When you plug 2 into the function, you get 0 divided by 0. This shows that the function doesn't actually ever get to 4. In fact, a quick look at the graph shows a hole right where 4 is. Despite the hole, the behavior of the function leading up to it is the same. Since the behavior is the same, we still say that the limit of the function as x approaches 2 is 4, even though it never actually gets there. Hopefully both of these examples really highlight how limits focus on the behavior of a function, what they get arbitrarily close to. So here they have tried to explain that when you approach something and when you are at that point, both are different things, right? Approaching means that means you're going arbitrarily close to that point, and when you are at that point, that means you're sitting at that point. तो अप्रोच का मतलब है जितना पास हो सकते हैं उतना पास जा रहे हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली एट दैट पॉइंट. सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट का मतलब ही ये है दैट यू आर अप्रोचिंग समथिंग. जितना पास हो पाएगा आप जाओगे, बट you will never be at that point. So here they have taken two examples. In the first example,
when you saw that when you're approaching a point कि function किस तरफ जा रहा है, so function was going to 11, right? When you plugged in values very close to that point, एक point के बहुत पास गए, तो function की value क्या आई थी? 11 आई थी. And also if you had substituted that point into the function, still it was given 11. But what is the difference here is, in first case we have gone very close to that point and we have seen what is the, how is the function behaving, where is the function going towards, which point the function is going towards. But in second case you have actually substituted that. तो substitution का क्या मतलब है कि आप चेक कर रहे हो कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या है. तो लिमिट हमेशा आपको ये नहीं बताएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है. लिमिट सिर्फ आपको ये बताएगी कि अगर फंक्शन आप एक पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज जा रहे हो तो फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जा रहा है. जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल में हमने जब डील किया, तो हमने जब बहुत क्लोज पॉइंट 2 के वैल्यूज ली, तो फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स 4, राइट? हमने पुट करके देखा तो फंक्शन अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है? 4 की तरफ. But actually when you substitute the point 2 into the function, it is giving you 0 by 0. So वो तो 4 नहीं है. तो function की value and limit of a function, both are different things. Is it clear to everyone? Is it clear or is Yes, there any ma'am. doubt? Yes, ma'am. Okay, so let's understand the same concept with another example. एक और वीडियो देखते हैं और उसमें हम लोग समझते हैं कि यही लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर फंक्शंस भी देखेंगे हम उसमें. और understand this example. Let's see if I can make it stop doing that. The idea of a triangle. So a triangle, if you look at it, is not really close to a circle at all. But then we add, a couple more sides and we get, a pentagon. Still not really close to a circle. So then we go to 7 sides. It's getting a little bit closer to a circle. Then let's go to 9. A little bit closer still. Then we have 11. And still a bit closer. And then we go to 13. So you can imagine what would happen if I kept adding sides and sides and sides and sides. Eventually it keeps getting closer and closer and closer and closer to looking like a circle. But is it actually a circle? Well, no, because if we zoomed up on it, we would have, little sides. If we got really, really close to it, so it wouldn't actually be a circle. The only time it would actually be a circle is if we can somehow go to infinity and get as close to being a circle as possible. That will be an infinite number of dots or sides. So, the idea of a limit is that you're approaching something. And, in this case, the limit was the circle. As we add sides, we're getting closer and closer to this idea, the shape of a circle. Well, with numerical limits, we're getting closer and closer and closer to a number. So this is what you might see, in your first couple of days of. So see, here what they have tried to explain is, we started with the triangle, and if we want to get a circle, what we have started doing is we have started adding the sides to it. Now, no matter how many sides you add to it, even if you add infinite number of sides, you will still be very close to getting a circle. आपको दिखेगा कुछ circle की तरह, but it will never actually be a circle, क्योंकि circle में आपको पता है there are no sides, and no matter how many sides you add to it, you will still have infinite number of sides. और circle में तो कोई edges, हमारे पास कोई vertices कुछ नहीं होते, so it will never be a perfect circle. So idea still remains the same, that you are approaching towards something, you're approaching to getting a circle, but you will never actually get a circle. जैसे एक पॉइंट को जब अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन किस तरफ जा रहे हैं वो मिलेगा, बट ये नहीं मिलेगा कि फंक्शन एक्चुअली उस पॉइंट पर क्या वैल्यू अटेन कर रहा है. So attaining something and approaching something are two different things. So limit deals with the concept of
अप्रोचिंग। क्योंकि क्या होता है, वेन एवर यू स्टडी फंक्शंस, हम लोग हर चीज़ को फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। एंड क्या होता है, जब किसी पॉइंट पर अगर आप वैल्यू चेक करते हो तो कभी कभी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, अब फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है या क्या वैल्यू ले रहा है उस पॉइंट पर। तो उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया गया कि अगर मुझे फंक्शन के बारे में उसका बिहेवियर पता करना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन किस तरफ जाएगा, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हूँ या राइट साइड से अप्रोच कर रही हूँ तो फंक्शन किस तरफ जाएगा, तो ये आइडिया हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, फंक्शन के एक पॉइंट को फिक्स रखकर जिस पर भी वो डिफाइंड है या नहीं भी डिफाइंड है उसको अप्रोच करना स्टार्ट किया और देखा कि फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है। अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से एक ही तरफ जाती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उसका बिहेवियर सेम है। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो भी 11 आ रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो भी 11 आ रहा है, तो हम बोलते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसका मतलब होता है कि उसका बिहेवियर सेम है फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। नाउ हियर आई एम सेइंग हम दो साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, क्योंकि जब भी हम नंबर लाइन पढ़ेंगे तो हमारे पास दो ही साइड्स हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इसीलिए हम उसको सिर्फ दो साइड से ही अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिटेल में समझेंगे by taking graphs of functions and mathematically how to write those functions. Okay, so let's see examples. इसी वीडियो में आगे examples explain किए गए हैं, तो हम देखते हैं आगे। Calculus class, you might see a graph like this, and your prof comes in and tells you, well, as you approach from the left side of your graph, and you're going down it. Maybe I'll get a marker out here. Let's do red, and you're going down it from the left side. You're going this way. You're getting closer as we approach this empty circle. We're not really sure what's happening there. As we approach it, we're getting closer and closer to, well, we're getting closer to 1 right here. This guy. And then we do the same thing from the right side. You're writing down this graph. And as we approach from the right side, we're approaching 1. So how you might write that, and this is what it looks numeric, what. See, here what you have done is, this is point 1. Now when you approach point 1, we always approach a point and when we see where is the function going towards. So this point is 1. तो 1 पर हम देख रहे हैं कि function का कैसा behavior है. So when you approach point 1 from the left hand side, the function from the left hand side and very close to 1 is at point 1 क्योंकि x is this and your result is always y, right? When you put x, fx और y is your result. So fx here is 1. तो जब 1 को अप्रोच किया लेफ्ट साइड से तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1. एंड ऐसे ही अब इसी पॉइंट को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो जब हम इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे very close to 1, you still see function right hand side से भी किस तरफ आ रहा है? Function is still coming towards this point and वो क्या point है? It is point 1 again. तो इसी को mathematically देखो अब हम कैसे लिख सकते हैं? But the form you'll see, the limit. I'm actually going to try to write really neat. Now, I usually handwrite my limits. It's really hard to do on when you're doing like with a pen tablet. As x approaches 1 from the left side, so x approaches. So you're going to write limit. पहले limit लिखते हैं LIM and उसके नीचे आप लिखोगे x approaches 1 minus. इसका मतलब है you are approaching point 1 from left hand side. If you put minus sign, that means you are approaching this one from the left hand side. तो लिमिट किसकी निकलती है? हमेशा लिमिट फंक्शन की निकलती है क्योंकि आप देखना चाहते हो फंक्शन का बिहेवियर. यू अप्रोच अ पॉइंट एंड यू वांट टू सी हाउ इज योर फंक्शन बिहेविंग very close to that point. So limit x tends to 1 minus f of x. Which is this one. Maybe I should have picked a different graph. But anyway, of f of x, so whatever the function might be, is actually equal to this one. So what y is essentially 1. And then from the right side,
limit as x approaches 1 from the right side. So you notice that I used a little negative, sort of a negative as the exponent, or whatever you want to call it, superscript. And then the same thing for this plus sign, the minus sign meaning from the left, the plus sign meaning from the right, of f of x is equal to 1. So what we notice is that as we approach from both sides, we're approaching the same number. So that's another fundamental concept of a limit, that in order for a limit to exist, it has to approach the same number from both sides of the graph. So if what I can say from this, based on having these two things, I can then make the conjecture, only if these things are true, I can say this. I need to have both of these things true, they equal the same number, then I can say the limit as x approaches 1 of f of x is equal to 1. So all I'm really saying with this is that as it gets really, really close to 1 here, really, really close to it, and then the graph is undefined actually at 1, so we can't actually get to 1. But as it gets really, 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 really close to it, the value of my graph y, f of x, is also 1. So it seems like the idea of a limit seems like such a complex topic, but it's actually fairly straightforward when you break it down. So let's have a look at another graph. Okay, so here I want to emphasize at one point. देखो, जब भी अब आप पढ़ रहे हो limit x tends to 1 minus f of x is 1 या limit x tends to 1 plus f of x is 1. So here it does not means function की value at point 1 is 1, right? अगर मेरे को लिखना होता function की value at this point is 1, मतलब f of 1 is 1, तो मैं क्या करती, मैं simple fx function लेती, x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दी एंड रिजल्ट हम लिख सकते थे. बट जैसे ही आपने ये लिखा कि लिमिट उसकी 1 आ रही है, तो लिमिट का मतलब ये हुआ कि 1 पॉइंट को अप्रोच किया आपने, इस पॉइंट को अप्रोच किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है. इट इज नॉट एक्चुअली अटेनिंग 1 आया नहीं है, आप देख सकते हो हॉलो सर्कल आ रहा है यहाँ पर. सो यू हैव नॉट अटेन्ड 1, बट यू हैव your function is moving towards 1, कि दोनों तरफ से वो एक ही तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से भी 1 की तरफ आ रहा है, राइट साइड से भी 1 की तरफ आ रहा है, बट एक्चुअली क्या 1 वैल्यू ले रहा है वो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है ग्राफ में. सो लिमिट मीन्स you are approaching a point and you are checking the behavior of the function. If the behavior of the function from left hand side and right hand side is same, मतलब दोनों value coincide कर रही है, जैसे कि इस केस में कर रही है, 1 1 आ रहा है, then you say the limit of the function exists and it is equals to जो भी आपके पास नंबर आया. उसका यही मतलब है कि दोनों तरफ से जो हमारे पास लिमिट आ रही है वो सेम है, फंक्शन दोनों तरफ से सेम ही पॉइंट की तरफ जा रहा है. तो ये बहुत हेल्प करता है हमें फंक्शन के ग्राफ को विजुअलाइज करने में. इवन इफ यू डोंट हैव द ग्राफ ऑफ द फंक्शन and you just evaluate the limit, you would know कि ग्राफ उधर से कैसा मूव कर रहा है, क्या उधर जंप आ रहा है, क्या वो स्मूथ मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है. अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से ग्राफ सिर्फ इस पॉइंट पर ब्रेक कर रहा है, बट अदरवाइज स्मूथ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है, तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ही यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, अदरवाइज ग्राफ एकदम स्मूथ यहाँ से पास कर पा रहा है. राइट? Any doubts in Yes, this ma'am. example or any confusion? कुछ भी है अभी पूछ सकते हो. किसी को कोई भी पॉइंट यहाँ तक क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो. Approaching a point is clear. Limit of a function, उसका क्या मतलब है? Is it clear? Yeah. Ma'am, in the beginning of the class जब हमने पहला वीडियो शुरू किया या फिर उसके ड्यूरिंग आपने बोला था कि जैसे 2 का एग्जाम्पल था उसमें, नहीं सॉरी 4 का एग्जाम्पल था, तो उसमें आपने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि जो जिस पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं उसकी वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम है, पर मैम उसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, वही हमने देखा था 11. आपने देखा नहीं था? जब हमने फंक्शन की वैल्यू
जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, जब हमने लिमिट निकाली वो भी 11 आ रही थी, और जब हमने उसमें सब्स्टिट्यूट किया वही नंबर तब वो भी 11 आ रहा था। तो वही एक एग्जाम्पल था, और भी अभी इसी वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। इसमें Okay. 3 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, जहां पर लिमिट सेम भी आ रही है, डिफरेंट भी आ रही है फंक्शन की वैल्यू से, और जो हम आगे क्लास में भी आज क्वेश्चंस करेंगे उसमें सारे ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। Okay. ma'am. एनी अदर डाउट किसी Yes, और? ma'am. हम्म, Ma'am, you said that it approaches but never becomes like 1. So अब हाँ इसमें हमने लिखा है limit of fx equals to 1. So अब exactly 1 हो कैसे गया? Like हम पहले तो हम approach कर रहे हैं from the negative side and the positive हाँ side, हाँ but then last ओके में ओके। देखो, जब आप वन पॉइंट को, इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब इसकी तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब देखो, आप अगर यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट कर रहे हो, तो अब मैं किसका बिहेवियर चेक कर रही हूँ? फंक्शन का बिहेवियर। अब जैसे जैसे ये पॉइंट हम वन की तरफ लाएंगे, तो फंक्शन यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है, राइट। अब जब मूव करते जाओगे, अब वन के बहुत क्लोज जाओ, आप इधर तक गए, तो अब देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ आ रही है? ग्राफ पर ही होती है ना फंक्शन की वैल्यू। yes तो yes फंक्शन अभी किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है। तो फंक्शन जा रहा है इस पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट क्या है? द फंक्शन, इस पॉइंट पर हम बोल रहे हैं क्या वैल्यू है? ये 1 है। तो फंक्शन जा रहा है 1 की तरफ, ठीक है। अब इसमें एक चीज तो यही समझ लो, अगर आपने ये चीज अटैच की हुई है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो इसका यही मतलब है कि फंक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। जब आप इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो वो 1 की तरफ जा रहा है। अब ऐसे ही जब 1 को अप्रोच कर रहे हो आप राइट हैंड साइड से, इस तरफ मूव कर रहे हो, तो yes जब ma'am. 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन अब देखो राइट हैंड साइड से यहां से ऐसे मूव करते हुए बहुत क्लोज टू 1 इस पॉइंट पर ही आ रहा है। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 1। हम लोग इसमें बहुत सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं ऑन दी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड ऑफ 1, और आप देखोगे जो वैल्यूज आती हैं वो बहुत क्लोज जाएंगी 1 के। एक्चुअली कभी 1 नहीं आएगा, जैसे हमने वो भी एग्जाम्पल देखा था कि सर्कल की तरह फिगर बन जाएगी, बट इट विल नेवर एक्चुअली बी अ सर्कल। तो ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि फंक्शन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहा है, बट ये 1 नहीं हुआ है, ये वैल्यू 1 नहीं हुई है। अगर ये वैल्यू 1 होती तो मुझे ये लिमिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ लिखना था f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। बट मैंने क्या लिखा है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज 1। मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट की तरफ जा रहा है, सिर्फ अप्रोच कर रहा है, ना कि एक्चुअली वो वैल्यू अटेन कर रहा है। Okay ma'am. इज इट क्लियर? Yes ma'am. और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे और बेटर क्लियर होगा। चलो फिर हम लोग पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट है उसी में आपको समझ आ जाएगा अभी जो आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। And see what you guys think of it. So let's do the one-sided limits for this guy. So if I look at, this is from the left side, so the limit as x approaches, and we're going to go with, let's see, 1, 2, 3, yeah, so that's 1 again. X approaches 1 from the left side of f of x, and this is a piecewise graph, and these are very common in first-year calculus. And it approaches, if you look here, that looks to be negative 4. So we go across from that point right there at negative 4. So as you approach here to 1, it goes to negative 4. Now from the right side, the limit, the ln, let's see, try that again, eh? The limit as x approaches 1 from the right side, so you're going this way down your graph, and you're getting really, really close to here. It looks like we're approaching 1, 2, 3. So of f of x is equal to 3. So
नाउ सी, अगर आप इस ग्राफ को देखते हो, अभी हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, ओनली थ्रू ग्राफ वी आर फाइंडिंग द लिमिट. सो अगर हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, दिस इज पॉइंट 1, लिमिट निकालना चाह रहे हैं, मतलब इफ वी अप्रोच पॉइंट 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा है. सो अब देखो, जब आप इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो फंक्शन का ग्राफ 1 के क्लोज किस तरफ जा रहा है, किस पॉइंट की तरफ जा रहा है. सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट, क्या है, it is -4, right? So from the left hand side, the function is going towards -4. वही हमने लिखा है, when we approach 1 from the left hand side, the function is approaching towards -4. And similarly, if you see, when you are approaching 1 from the right hand side, अब right hand side में ग्राफ ये है, तो अगर आप राइट हैंड साइड से फंक्शन का ग्राफ देखोगे, तो वो किस पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो वो आ रहा है इस पॉइंट की तरफ, and this point is nothing but 3. So अब देखो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, that means this, and जो राइट हैंड लिमिट है, both are different. तो जब दोनों लिमिट डिफरेंट है, तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा आया हमारे पास, देखो फंक्शन में एक ह्यूज जंप आ गया है या नहीं, राइट? तो हम लोग, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती, तो ये ह्यूज जंप नहीं आता, हो सकता था एक सिंगल ब्रेक हमारे पास आ जाता, बट हमारे पास वैल्यू, जो फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, वो सेम आ जाती. बट इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट, तो हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोनों वैल्यूज कोइंसाइड नहीं कर रही हैं. Okay, one question here. Can anybody tell me, by looking at the graph, what is the value of the function at 1? कोई बता सकता है? You can raise your hand. What is the value of the function at point 1? You, all of you know how to study graph. आप लोग already कर चुके हो graph वगैरह, तो आप मुझे आंसर कर सकते हो. देखो ध्यान से. Yes, Sukmani. 0 maybe. 0? Okay, let me see. So if you look at it, our one-sided limit. Okay, anybody else? और भी आंसर्स ले लेते हैं. Yes, Meghna. Ma'am, is it 3? Is it 3? I'm not Okay. Okay. Yes, Nishtha. Ma'am, it's 3. It's 3. Okay. देखो फंक्शन की वैल्यू का क्या मतलब है. So when we look at this graph, तो मैंने बोला फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो इस पॉइंट पर मैं देख रही हूँ फंक्शन की वैल्यू कहाँ अटेन हुई है. अटेन का मतलब क्या होता है, ग्राफ कहाँ बन रहा है. अब ग्राफ ये भी है और ये भी है, बट क्योंकि यहाँ पर हॉलो सर्कल है, तो मतलब 1 पॉइंट पर फंक्शन इधर वैल्यू नहीं ले रहा है. फंक्शन कहाँ वैल्यू ले रहा है, फंक्शन वैल्यू ले रहा है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट क्या है, 1 2 3. सो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 इज व्हाट, इट इज 3. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट जो हमारे पास लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग आई है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या है, 3. सो दे आर नॉट सेम. इज इट क्लियर? सो हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ कि फंक्शन की वैल्यू बताओ, या फंक्शन आपको देखना है कि लिमिट क्या है फंक्शन की, सो यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, क्योंकि वहीं पर तो हमारे पास x के लिए वैल्यूज अटेन हुई हैं. फॉर ऑल दीज x's, these are your y's. ग्राफ पर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, those are our y's. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. I had a doubt. Yes, बोलो. When we are approaching from the left side, ma'am, you just said that there is hollow circle, so we cannot take the value of the function. So how have you written -4? Because this is not the value of the function. This is limit of the function. यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि value of the function at
1 is -4. मैंने क्या कहा? लिमिट ऑफ द फंक्शन इज -4. जैसे ही मैंने लिमिट वर्ड यूज कर दिया, उसका मतलब है फंक्शन अप्रोच कर रहा है, फंक्शन जा रहा है -4 की तरफ, फंक्शन -4 नहीं है. यही हमें कॉन्सेप्ट समझना है बार बार. मैं इसी पॉइंट को बार बार आपको बोल रही हूँ कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 नहीं बोला मैंने. जब मैंने आपसे पूछा था लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 1, उसका मतलब है कि आप ये बताओ कि 1 को अप्रोच करने से लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड फंक्शन किस तरफ जा रहा है. तो हमने यही चेक किया इस ग्राफ में. जब 1 को अप्रोच किया लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है? तो फंक्शन इस तरफ जा रहा है. आप देखो ग्राफ कहाँ पर जाकर स्टॉप कर रहा है, वो बहुत क्लोज 4 के जाकर स्टॉप कर रहा है. तो हमने बोला कि फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, राइट. मैंने ये नहीं कहा फंक्शन 4 हो गया, फंक्शन की वैल्यू 4 हो गई. मैंने कहा फंक्शन -4 की तरफ जा रहा है. तो इसीलिए हमने बोला लिमिट इज -4. हमने ये नहीं कहा f ऑफ x इज -4, हमने कहा लिमिट ऑफ एफ एक्स इज -4. और लिमिट का तो मतलब ही है कि अप्रोच कर रहा है वो -4 की तरफ. ओके मैम. इज इट क्लियर मेघना? यस मैम, इट्स क्लियर. ओके, सो लेट्स सी आगे. Limits are not equal. So what we can't really say anything about this. All we can say is that the limit of x approaches 1 does not exist. That mean girl moment, right? The limit does not exist. So, yeah, that's that is a fundamental to understanding of limits, is that limits have to approach the same from both sides. So both one-side limits have to be the same. And it goes back to this one. It's easy to sort of look at the graph and tell, well, this one doesn't have a jump. This one has a jump discontinuity here, right? So, all right, so let's look at one last example that you might see in calculus class, and these are the kind of monotonous examples, but anyway. So you have a function, and your professor asks you to or your teacher, me, asks you to evaluate the one-sided limits by making a chart. So it's kind of the same thing numerically as it was visually. So if I put 1 in here, what I notice right away is that I have division by 0. So I have a non-permissible value at x equals 1, or a discontinuity, point of discontinuity, whatever you want to call it. So right here. Okay, so if you consider this example, इधर एक बहुत important चीज देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में x - 1 है, तो आपको ये पता है कि 1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अटेन नहीं होगी, राइट? ऑल ऑफ अस नो दिस, दैट डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0. फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज नॉट डिफाइंड. दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ये हमें पता है. यस मैम. बट अगर अब मैं पता करना चाहूँ कि फंक्शन 1 के अराउंड कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि 1 पर वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है, बट 1 के आसपास तो कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये तो हम पता कर ही सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू सी कि 1 के अराउंड फंक्शन किस तरफ जा रहा है. वैल्यू नहीं आ रही है उस पॉइंट पर 1 पर, बट हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से अगर 1 को अप्रोच करेंगे और राइट साइड से 1 को अप्रोच करेंगे, तो वो वैल्यूज किस तरफ जा रही है, सेम पॉइंट की तरफ जा रही है या अलग अलग पॉइंट की तरफ जा रही है. अब वहां पर जरूरी नहीं है कि 1 पर उसको डिफाइंड होना ही था. 1 पर यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है. नाउ यू सी कि क्या वैल्यूज आती हैं. I have no idea what's happening. That's the hole in our graph. That's all it is, the hole in our graph. So if I, subbed in 0.9 into this guy, and what I'll do first to make my life a little bit easier is I'll actually reduce this down because, this factors to x - 1, x plus 3, all over x minus 1. And what happens is this cancels. And when you get cancellation like that, that means that you have a point of discontinuity. So it'll look like the first graph that we had, the parabola with the hole in it, essentially. Well, this one actually be just a line with a hole in it because we're left with x plus 3. So
If I sub 0.9 into here, I'm going to have 3.9. If I sub in 0.99, I have 3.99. I do the same thing here, 3.999. So if you look at it as देखो मैंने बोला 1 पर फंक्शन वैल्यू नहीं ले रहा है, तो अगर इस फंक्शन में आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड, राइट? बट अब देखो लेफ्ट साइड से अगर मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूँ 0.9, 0.99, 0.99 विच आर वेरी क्लोज टू 1, सो यू कैन सी, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि आपने बोला -4 की तरफ क्यों, -4 कैसे आ गया अगर हम अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अब 1 की तरफ जा रहे हो आप, हमने बहुत क्लोज 1 के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट्स लिए, और जब आप फंक्शन की वैल्यूज देखोगे तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है बाय लुकिंग एट दीज नंबर्स। बताओ अगर आप एक और 0.99999 ले लोगे सो इट इज गोइंग टू बी 3.99999, है ना? तो फंक्शन किस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, कैन एनीबडी आंसर? 4 की तरफ 4 right? It is going towards 4. So that is the idea behind it कि 0.1 पर हम वैल्यू अटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 1 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं वी आर गोइंग वेरी क्लोज टू द पॉइंट एंड वी आर सीइंग वेयर इज आवर फंक्शन अप्रोचिंग, सो फंक्शन जा रहे हैं 4 की तरफ, राइट? ऐसे ही हम राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं। approaching 1 from the left side. So from the left side, it looks like I'm approaching 4. Like, so I keep getting closer and closer to that number 4. And I'll do it over here from the right side. So it's going to be 4.001, 4.01, 4.1. So if I come from the right side, again, I'm getting closer and closer to 4. And I could keep making this 4.9999999, and I still, each time, I keep getting closer and closer to 4. So what I can say in this situation is that the limit, as x approaches 1, of this f of x, I'm not going to write it out. You should, if you're on a test, you should write the whole thing out, is 4. Because both one-sided limits are approaching the same number. Right? अब देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड मुझे 4 बताया और राइट हैंड लिमिट भी अगर आप देखते हो, इफ यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1, वेरी क्लोज टू 1, बहुत दूर नहीं लेते हैं वैल्यूज, जब भी हम लिमिट की बात करते हैं वेरी वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट, तो जब हमने बहुत पास उसके पॉइंट लिया तो हम देख रहे हैं फंक्शन जा रहा है 4.001, और भी पास लोगे तो 4.0000001, सो दैट मीन्स from the right hand side also the function is moving towards 4. तो लेफ्ट साइड से भी 4 की तरफ आ रहा है, राइट साइड से भी 4 की तरफ आ रहा है, और देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि लिमिट फंक्शन की, लिमिट लिखा है, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 4, मतलब फंक्शन दोनों साइड से 4 की तरफ जा रहा है। किस पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। क्या 1 पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड था? was function defined for 1? नहीं, है ना? बट लिमिट फिर भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई ना, बिहेवियर क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों क्या है, सेम है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो इसका ग्राफ होगा उसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ब्रेक आने वाला है, 1 पॉइंट पर ब्रेक आने वाला है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड से तो फंक्शन बहुत स्मूथली मूव करते हुए आ रहा है 4 की तरफ, ओनली एट पॉइंट 1 फंक्शन में एक स्मॉल ब्रेक आ रहा है क्योंकि वो उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, तो वो ग्राफ पर वहां वैल्यू नहीं ले रहा है, कहीं और वैल्यू ले रहा है। Is it clear to everyone? Is this concept clear? Right? Yes, ma'am. So approaching and to be at that particular point, both are different concepts. तो हम लोग आज डिटेल में कुछ चीजें देखेंगे और भी अभी क्वेश्चंस में, that when we are given any function and we want to know लिमिट क्या है उस फंक्शन की अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड एक फंक्शन का क्या बिहेवियर है, तो हम वो निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। यू कैन सी इट थ्रू ग्राफ। हमने अभी सारे जो एग्जांपल्स किए बहुत इजीली ग्राफ ऑलरेडी गिवन थे, हमने करके देख लिया, अदरवाइज हम मैथमेटिकली सीखेंगे इस चैप्टर में हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके, सो लेट्स सी। पहले इसकी एक जनरल डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है।
सो जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, लिमिट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए, इधर पॉइंट मैंने लिया है ए, उसको लिखते कैसे हैं, वी राइट लिमिट, किसकी है, लिमिट है फंक्शन की, हमेशा लिमिटिंग वैल्यू हम निकालते हैं फंक्शन की, सो वी राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, और लिमिट कब निकलती है, जब आप एक पॉइंट को अप्रोच करते हो, तो आप इसके बेस में लिखोगे x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि मैंने बोला है लेफ्ट हैंड लिमिट, सो आप a पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, दिस इज हाउ यू राइट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at point a. Then similarly right hand limit of fx at a, so limit function की है, so limit of fx कब, जब आप a को अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड साइड से, so you're writing x tending to a, ये एरो साइन आपको रिप्रेजेंट करता है दैट यू आर अप्रोचिंग, सो व्हेन यू आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, प्लस डिनोट्स राइट हैंड साइड, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल आएंगी, दोनों वैल्यूज को इंसाइड करेंगी, एंड इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन लेफ्ट हैंड लिमिट विल नॉट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, राइट। तो अगर हम जनरली इसका एक डेफिनेशन देखना चाहें तो इट इज as x tends to a, that means if you are approaching a point a and your function is approaching a point L, so as x tends to a, fx tends to L, then L is called the limit of the function, which is symbolically written as limit x tends to a, f of x is L. Now you must notice here I have not written plus or minus, इसके superscript में I have not written plus or minus. This means left hand limit and right hand limit both are included in this, और वो दोनों क्या आ रही हैं, वो L आ रही है। तो आपने A को अप्रोच कर लिया लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और फंक्शन किस तरफ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू जा रही है L की तरफ, तो हम बोलते हैं L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, एंड दिस इज हाउ यू राइट इट एज कंबाइंड। अगर अलग अलग लिखना है तो ये जो हमने पिंक स्टेटमेंट लिखा है उसको ऐसे लिखते हैं, और यही सेम चीज तो आप ऐसे लिख सकते हो, बट यू कैन ओनली राइट दिस व्हेन द लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि जब दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड होगा तभी हम उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, अगर वो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्लियर? एनी डाउट्स? तो मैम जब हमने लास्ट एग्जांपल देखा था उसमें नॉट डिफाइंड आई थी हमारी लिमिट, सो उसमें एग्जिस्ट हमारी लिमिट नॉट डिफाइंड नहीं आई थी, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड थी 1 पर, लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी, यस मैम, राइट? देयर इज अ डिफरेंस फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। और भी अभी एग्जांपल्स करते हैं और आपको क्लैरिटी मिलेगी, बट आई थिंक दिस जनरल डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन हाउ टू राइट इट, राइट? चलो देखते हैं हम लोग अब आपके एग्जांपल, आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि वैल्यू सेम आ सकती है या नहीं, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलो, फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सो हियर वी आर गिवन अ फंक्शन f of x is x plus 2 when x is not equals to 1, 0 when x is equals to 1, और लिमिट हम चेक कर रहे हैं at x is equals to 1। तो सबसे पहले सब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फंक्शन पढ़ना आना चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या बोला कि जब x 1 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन इस तरह से वैल्यू लेगा, और जब 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। ऑल्दो द क्वेश्चंस यू विल नॉट बी आस्क्ड टू ड्रॉ द ग्राफ, पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूछ सकती, पूछ सकते हैं, बट यूजुअली अगर आपको लिमिट का क्वेश्चन आता है तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाना है, बट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए तो मैं यहाँ पर ग्राफ्स भी दिखाऊंगी। देखो मैंने ये फंक्शन रीड किया, अब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 कितनी है, 0, यही मतलब है इसका, ये हमने पढ़ना सीखा है f of x फंक्शन के, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू है 0, तो मैं इस पॉइंट को मार्क करूंगी, सॉरी ये मैंने गलत मार्क किया है, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज x इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू क्या है 0, सो दिस इज माय पॉइंट,
ठीक है, मैं इसको इससे मार्क कर देती हूँ. I hope this is clear to everyone. At x is equals to 1 फंक्शन की वैल्यू है 0, तो यही पॉइंट होने वाला है. Yes, ma'am. Okay. Now let's mark the other point. जब x 1 के इक्वल नहीं है, तो 1 के इक्वल नहीं है तो हम दूसरे पॉइंट्स पुट करके देख लेते हैं. तो देखो मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिए. मैंने 0.5 ले लिया, 0.9 ले लिया, 1.1, 1.5, ऐसे मैंने पॉइंट्स ले लिए 1 के अराउंड, और अब मैं उनको प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ. तो व्हेन इट इज 0.5, तो 0.5 इज समवेयर हियर, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2.5. तो 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 इज समवेयर हियर, राइट? When it is 0.9, 0.9 कुछ इधर होगा, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2.9, तो वो कुछ इधर होगा, राइट? देन 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड है, तो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है. देन 1.1, 1.1 मतलब यहाँ पर when x is 1.1, the function की वैल्यू is 3.1, तो 3.1 is somewhere here. Then 1.5, 1.5 is here and 3.5 is somewhere here. तो अगर आप देखोगे, if you join this graph, तो वो कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास. But if you see 1 पर तो फंक्शन यहाँ डिफाइंड नहीं है. 1 पर फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? 1 पर फंक्शन इधर डिफाइंड है, इंस्टेड ऑन द ग्राफ. और हम इसको अगर देखें तो ग्राफ ऐसे कंटिन्यू कर रहा है. So if you see, we are getting a hollow circle in the graph, and that is because at point 1 function 0 पर वैल्यू ले रहा है instead on the graph, right? ये क्लियर है सबको? Yes, yeah. Is the graph clear to everyone? अगर ग्राफ क्लियर Yes. है तो आप मुझे बहुत इजीली 1 पर इसकी लिमिट बता सकते हो. लेट्स कॉन्सेंट्रेट नाउ ऑन फाइंडिंग द लिमिट. अभी मैंने ग्राफ बना दिया, अब लिमिट निकालते हैं. देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहती हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है? यू आर अप्रोचिंग 1 पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि 1 पर लिमिट पूछ रहे हैं. तो आप देखो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, बता सकते हो? What is this point? 3. 3 Right? It is equals to 3. अगर आप ग्राफ से बता रहे हो तो हम ऐसे बता सकते हैं. अदरवाइज अगर हम देखना चाहें डायरेक्टली मैथमेटिकली थ्रू फंक्शन, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं. When we are approaching 1 from the left hand side, मेरा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ 1 will be given by this. क्योंकि 1 के इक्वल नहीं होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में इस तरीके से वैल्यू लेगा. तो मैं फंक्शन यूज कर रही हूँ ये वाला, और मैं डायरेक्टली इसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. तो देखो ये भी कितना आया, 3 आया. तो फंक्शन की वैल्यू, limit of the function, if you see, it is from the left hand side, it is coming out as 3. And also अगर आप यहाँ पर देखोगे राइट हैंड लिमिट, तो 1 को जब आप अप्रोच करोगे राइट हैंड साइड से, सो व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू 1, तो फंक्शन किस तरफ आ रहा है? अगेन फंक्शन इज स्टिल कमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज अगेन क्या है? 3. तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल. तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट्स. राइट. सो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x. अब मैंने देखो प्लस और माइनस हटा दिया, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो कितनी आ रही है? इट इज कमिंग आउट एज 3. So this is how you can see the limit of the function from the graph. And अगर हम डायरेक्टली हम फंक्शन से करना चाहते तो हम कैसे कर सकते थे? क्योंकि जब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो मैं लिखूंगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस. अब 1 माइनस के लिए आप देख लो कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला या ये वाला, क्योंकि दो तरीके से वैल्यू ले रहा है. तो 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट ऑफ 1. तो लेफ्ट ऑफ 1 के लिए तो यही यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल्स टू 1. नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब है ईदर लेफ्ट ऑफ 1 और राइट ऑफ 1. सो वी आर यूजिंग दिस फंक्शन. तो ये फंक्शन आया, एंड नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द लिमिट, तो हम डायरेक्टली इस पॉइंट को पुट कर देंगे. और हमने ये डायरेक्टली पॉइंट क्यों पुट किया? क्योंकि वेरी क्लोज टू 1 का मतलब क्या है?
अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो वैल्यू अगर दे देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो हम दूसरी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये भी वैल्यू 3 आ रही है और ये दोनों वैल्यूज भी 3 आ रही है, राइट? ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। इज दिस एग्जाम्पल क्लियर टू एवरीवन? कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी। है किसी को कुछ डाउट? नो? ओके, चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। हमें लिमिट चेक करनी है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 और किस पॉइंट पर लिमिट चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 ये कैसा फंक्शन है, कोई बता सकता है मुझे? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 कैसा फंक्शन है ये? व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? आप कर चुके हो ये रिलेशन एंड फंक्शंस में। कांस्टेंट फंक्शन। वेरी गुड, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट? क्योंकि एक ही वैल्यू लेगा, नो मैटर एक्स को क्या भी वैल्यू डाल 3, 100,000, y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है विच इज 3। तो यहाँ पर आप टेबल फिल करने में बहुत इजीली आप टेबल फिल कर सकते हो। व्हेन x इज 0 y इज 3, हमेशा 3 रहना है। व्हेन x इज 1 y इज 3, 1.53, 3.9 कुछ भी डाल लें, हमारा y हमेशा 3 है। लेट्स प्लॉट इट। तो जब 0 है, जब हमारे पास 0 है x, तब भी वैल्यू 3 है। जब 0.5 होगा तब भी 3 है। जब 1 होगा तब भी 3 है। 2 होगा तब भी 3 है। -1 होगा तब भी 3 है। तो मैंने ये सारे डॉट्स बनाए एंड नाउ हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं टू गेट अ ग्राफ। तो अगर आप ज्वाइन करते हो, सो दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ द फंक्शन, राइट? दिस इज योर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखते हैं हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं लिमिट। ग्राफ तो बना लिया, अब लिमिट निकालनी है किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। तो मैं इस पॉइंट के आसपास देखूंगी कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। तो देखो, व्हेन यू अप्रोच 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बताओ फंक्शन किस तरफ जा रहा है? एनीबडी रेज योर हैंड एंड टेल मी। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2, that means when you are approaching 2 from the left hand side. Yes, Nishtha? 3. वेरी गुड। जब 2 को हम अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का ग्राफ ये है। तो हम देख सकते हैं वेरी क्लोज टू 2 द फंक्शन इज एट दिस पॉइंट, एंड वो क्या पॉइंट, वो पॉइंट है 3। ऐसे ही जब राइट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे 2 को, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन किस तरफ जा रहा है? अगेन यही पॉइंट की तरफ आ रहा है विच इज ऑल्सो 3। यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, एंड वो कितनी है? 3. Sukmani, now answer me. What is the value of the Yes, function at point 2? ma'am. What is the Value of the function at point 2 is also 3 because it's a very good, constant function. right? So 2 पर भी function की value कितनी है? And 3 ही है. So this answers your question जो आपने मुझे पूछा था कि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सब कुछ सेम आए। तो यहाँ पर आप Yes. देखो सब सेम आ रहा है। तो जब भी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड value of the function, all three are equal, all three coincides. So this is a very important thing, that at that point your graph will be smooth. There will be no break, no jump in the graph. अगर ये तीनों वैल्यू coincide कर जाती हैं, सेम आ जाती हैं, तो हमारा हमेशा ग्राफ एकदम स्मूथ ग्राफ होगा, कंटिन्यूस ग्राफ होगा, उसमें कोई ब्रेक या जंप नहीं आएगा। ठीक है, ये माइंड में रखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्योंकि हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2 कितनी आ गई? इट इज 3। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज इक्वल्स टू 3। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. ओके, एक और देखते हैं। This is the function given to you. F of x is x minus 2 when x is less than 0.
0 when x is 0 and x plus 2 when x is greater than 0. तो पहले तो सब अपने आप ट्राई करो इसका ग्राफ बनाने का, अपने आप अभी सब लोग ट्राई करेंगे ग्राफ कैसा बन रहा है, एंड देन आई विल प्लॉट इट हियर. फिर आप चेक करना कि आप ठीक बना पाए हो या नहीं. यू मेक अ टेबल, उधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्लॉट द ग्राफ. एनीबडी जिसने ग्राफ बनाया है? अगर किसी ने बनाया है, कोई बताना चाहता है, so you can raise your hand. बनाओ, टाइम लो, but you have to draw the graph. बनाए किसी से? चलो हाफ ही बता दो. पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं when x is equals to 0, तो x equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, तो 0 पर 0 डिफाइंड है, तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा. अब देखो ग्राफ कैसे ब्रेक है. एक है हमारे पास when x is less than 0 और एक है x greater than 0. लेफ्ट ऑफ साइड ऑफ 0 पर फंक्शन इस तरीके से वैल्यू ले रहा है. तो लेस देन 0 के लिए मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला फंक्शन. When x is less than 0, I am using this function which is x minus 2. So no matter what value less than 0 you are taking, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके उसे प्लॉट करोगे. ठीक है, करके देखते हैं. लेस देन 0 में -0.5, तो -0.5 अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी -1.5 देगा. सो -1.5 समवेयर हियर. मैं ठीक बोल रही हूँ या माइनस कितना Ma'am, है? shouldn't it be -2.5? Right, it will be -2.5. So when you substitute -0.5 -2, it is going to be -2.5. तो -0.5 के लिए it will come somewhere here. ठीक है. अब क्योंकि लेस देन 0 की बात हुई है तो वेरी क्लोज टू 0 भी देख लेते हैं, सो दैट हम उसको एक्यूरेटली ज्वाइन कर पाए. सो वेरी क्लोज टू 0, दैट मीन्स -0.0000 1 अगर हम लेते हैं, तो वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट
हमारे पास अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, so it will be minus 2.000001. So that means it is going to be very very close to this point, -2. होगा? बताओ, खुद सोचकर बताओ. Right? मैंने सब्सटीट्यूट किया -0.00001 because I want value very close to 0. As we are plotting x less than 0, तो less than 0 के लिए ये सारे पॉइंट्स तो हम ले ही सकते हैं, बट वेरी क्लोज टू 0 देख लेते हैं कैसा आ रहा है. तो यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी 2. 2 है नहीं, 2 की तरफ आ रहा है. ऑल्सो 0 पर क्योंकि फंक्शन यहाँ वैल्यू ले रहा है इंस्टेड ऑफ दिस, तो यहाँ पर एक हॉलो सर्कल आ जाएगा क्योंकि फंक्शन ने यहाँ पर वैल्यू अटेन करी है. और ऐसे ही अगर आप दूसरी कोई वैल्यू पुट करके देखते हो, लेट्स से -2 पुट करते हो, सो इट विल बी -4. सो ग्राफ for less than 0 will be somewhat like this with a hollow circle when it is at 0. ऐसा आ रहा है. ऐसे ही similarly you can plot for x greater than 0. तो जब x greater than 0 के लिए करोगे, so we are using this function which is x plus 2, मतलब इसी में पुट करेंगे. ठीक है, तो x plus 2 के लिए करके देखते हैं. कोई वैल्यू लेते हैं x greater than 0 के लिए. सो पहले ले लिया लेट्स से 1. तो अगर 1 पुट करते हो x को 1, तो योर वैल्यू इज 3. तो 1 पर 3 समवेयर हियर. अब क्योंकि ग्रेटर दैन 0 बोला है, सो आई वांट वेरी वेरी क्लोज टू 0 ताकि मैं प्लॉट कर पाऊँ. तो एक बार ले लेते हैं 0.5. सो इफ यू टेक 0.5 इट इज 2.5. इट विल बी समवेयर हियर. एंड इफ यू टेक वेरी क्लोज टू 0, तो मतलब 0.00001. सो ये कितना आएगा? 2.00001 है ना. तो मतलब इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट. बट क्या 2 पर वैल्यू लेगा फंक्शन? फंक्शन विल नेवर टेक द वैल्यू एट पॉइंट 2, क्योंकि 0 पर तो फंक्शन यहाँ पिंक पॉइंट से डिफाइंड है, ना कि इस पॉइंट पर. तो यहाँ पर आ गया एक हॉलो सर्कल. अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया. So this is how your graph is going to look like. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Graph is clear? Okay. अब यहाँ पर एक question सुनो. जो भी आंसर करना चाहता है, you have to raise your hand. If the graph is clear, just by looking at the graph and looking at the jump, can you tell me कि 0 point पर limit exist करेगी या नहीं करेगी? Just by looking at the graph. You can raise your hand and tell me whether you think the limit will exist or not. Limit exist करने का equal आएंगे. कोई और ट्राई करना चाहता है? Raise your hand. ग्राफ में देखकर ही बताना है 0 पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है फंक्शन की. I want somebody else to try. Raise your hand. गलत भी होगा कोई बात नहीं, ट्राई करो एटलीस्ट. यस अनुवंशिका? यस मैम, करेगी. लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ओके. और कोई आंसर? ग्राफ Ma'am, में it will not exist. it will not exist. Okay, let's see. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ. आप यहाँ से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ 0 से हमें लिमिट मिलने वाली है ग्राफ पर, तो वो दी जाएगी इधर से. सो व्हेन यू अप्रोच 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन का ग्राफ किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? इट इज गोइंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट एंड दिस इज -2. And when you approach 0 from the right hand side, function का ग्राफ किस तरफ आ रहा है? It is coming towards this point and this is 2. क्या left hand limit और right hand limit equal है? नो मैम.
No, the limit of the function does not exist. Also, क्योंकि मैं बोल रही थी ग्राफ से देखकर बताओ, इतना ह्यूज जंप अगर उस पॉइंट पर आ गया, अगर मैं 0 पॉइंट पर लिमिट देख रही हूँ और उस पॉइंट पर इतना ह्यूज जंप है, लिमिट विल नेवर एग्जिस्ट. लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? ओनली इफ उस पॉइंट से आपका ग्राफ स्मूथली पास कर गया है, देयर इज नो ब्रेक, तब एग्जिस्ट कर सकती है. या ओनली इफ इट इज देयर, इफ देयर इज सिंगल ब्रेक, एक स्मॉल ब्रेक आ रहा है सिर्फ उस पॉइंट पर, तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है. बट अगर जंप आ रहा है उस पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं और ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, तो लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो देयर इज अ ह्यूज जंप इन द ग्राफ, द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. सो लेट्स राइट दिस डाउन कि मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी. तो मैं लिखूंगी left hand limit will be limit x tends to 0 minus f of x, limit of the function when we are approaching 0 from the left hand side kitni hai? It is -2, right? And right hand limit, limit x tends to 0 plus f of x. किस तरफ जा रहा है ग्राफ? Graph is coming towards this point and this is 2. Left hand limit is not equals to right hand limit. Limit does not exist. Right? Clear? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है फंक्शन की. किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है? 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है. Is this question clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो मुझे इसी क्वेश्चन में एक चीज बता दो. इफ इंस्टेड ऑफ 0 मैं आपसे पूछती लिमिट एट पॉइंट 1, बताओ क्या 1 पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी? Instead of 0, I am asking you limit at point 1. So you have to raise your hand and tell me whether the limit will exist or not. At point 1. This is point 1. इस point पर अगर मैं पूछ रही हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो क्या लगता है आपको ग्राफ देखकर कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? मैम कर रही है, लिमिट कर रही है? एग्जिस्ट. Yes, मेघना? मैम इट एग्जिस्ट. इट एग्जिस्ट. गुड. सुखमनी ने भी यही कहा, क्योंकि 1 पॉइंट पर अगर हम देखें तो फंक्शन ये है, इधर से ग्राफ बना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से है या राइट हैंड साइड से है, फंक्शन की वैल्यू तो इसी पॉइंट पर अप्रोच करेगी और दोनों सेम आ जाएगी. सो अगर ग्राफ में ह्यूज जंप है तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. अगर एक सिंगल पॉइंट पर जंप है तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है. और अगर स्मूथली पास कर रहा है, और स्मूथ की क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर ऐसा दिख रहा है तो लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ग्राफ वहां से स्मूथली पास करता है. फाइन. सो वी आर नॉट गोइंग टू गो अहेड टुडे. आगे कुछ नहीं करते हैं, और क्वेश्चंस थे, बट हम लोगों ने आज डिस्कस किया है व्हाट डू वी मीन बाय अप्रोचिंग अ पॉइंट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लिमिट ऑफ, एंड फिर हम थ्रू बाय सब्स्टिट्यूशन. सो आज के लिए हम इधर ही स्टॉप करेंगे. आप लोग नेक्स्ट क्लास